हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू ग्रेट एकेडमी। अच्छा, मुझे ये बताओ सौम्या, मान लो सपोज डैट मुझे हीट ट्रांसफर करवाना है और फिन को यूज करना है, ठीक है। और वो बनना चाह रहे हैं कि क्या जिस फील्ड की आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसी फील्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, उसी में क्या आप आगे जाके 5 साल बाद अपने आप को देखना चाहते हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू ग्रेट एकेडमी। अभी एक हमारा मॉक इंटरव्यू का सीरीज चल रहा है जिसमें हम हमारे स्टूडेंट्स जो गेट में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं उनका एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी बातें हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, बहुत सारी बातें उनसे किया जाए, टेक्निकल नॉन टेक सारी बातें जितनी पॉसिबिलिटी है ना। तो उसी सीरीज में हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं सौम्य रंजन, और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अमित मौर्य सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो सौम्य, कैसे हो? Good morning, sir. अच्छा हूँ sir. गुड मॉर्निंग, गुड All is मॉर्निंग। good. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सौम्य, टेल मी अबाउट योर सर। So my name is Somaranjan Mishra. I belong to Nayagarh, Odisha. I have done my BTech from College of Engineering and Technology, Bhubaneswar, with an aggregate CGPA of 8.87, and I have graduated in 2020. And during my after my fourth semester, I have done my internship at Hindustan Aeronautics Limited, Koraput Division, Sunaveda, and my final year project was testing fabrication of Whirlpool turbine, which is a low cost turbine which is fish friendly turbine. ओके, सो यू आर फ्रॉम ओडिशा। Yes, sir. सो टेल मी सम ब्यूटी पॉइंट्स अबाउट ओडिशा। Sir, as you know, Odisha is the land of Lord Jagannath. So it is quite famous for Jagannath temple, and there are a lot of sweets that are famous from Odisha, which starts with Rasgulla, Chenapodo, and all. And there are a lot of religious places, especially in Bhubaneswar, which is the capital city, and it is known as the city of temple. And that's all. ओके, can you tell me something about what kind of mineral we get from the Odisha, as well as lakes and kind of national parks? So it is Odisha is also a mineral rich state. It is famous for iron ore, bauxite. Iron ore is produced and manufactured in Sale, Rourkela, and bauxite is Nalco is famous in the production of bauxite, aluminium, and even it has the power stations like NTPC also. And the national parks present are Bhitarkanika, which is famous for crocodile, as well as Simlipal National Park, which was in recent times famous as there was forest fires a lot in Simlipal, and it is famous for tigers. Okay. What is your subject in the mechanical engineering where you are interested? I am quite interested in thermodynamics, fluid mechanics, mechanics of solid, and heat transfer. Okay. ओके, So, सौम्या, आपने जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पर मेंशन किया है कि आपने जो है वो दो प्रोजेक्ट पे वर्क किया है। एक आपका एरोलीफ टरबाइन एंड Yes, सेकंड वन इज वर्लपूल टरबाइन। yes, तो sir. मतलब क्या थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करेंगे आपने कैसे मतलब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, या कैसे आपने न्यूमेरिकली प्रोजेक्ट को मतलब किया है या एक्सपेरिमेंटल किया है? तो थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया पहले दोनों प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा। So Whirlpool turbine was my final year project. So three members of us have made that project. So मतलब हमें हमें जितना लगा कि फार्मर्स के लिए जनरली जो भी फार्मर्स में काम करते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही नहीं है। तो ओके, तो जो स्प्रिंकलर्स रहता है फार्मर्स को सप्लाई करने के लिए, वो तो ओके। बाय डिफॉल्ट वाटर प्रेशर स्प्रिंकलर्स रहता है, जी, लेकिन जी। फॉर लार्ज फार्मलैंड वी somewhat require electric sprinklers. बिल्कुल। Besides that, there is a fluctuation in electricity supply in the village areas also. So ओके, to counter these issues, Whirlpool turbine was created. So it is different from a normal turbine in such a way that it works on the free vortex principle.
So मतलब actually the farmlands are generally agricultured by canal water. So canal Okay. water while flowing has a large velocity. So we utilize that large velocity in order to generate the electricity. The work in the normal turbine, there are around at least 15 blades in a turbine. Okay. So, but if canal water is passing, there will be fishes in the turbine. So the farmers may utilize those fishes in agriculture sector. So to counter these problems, purple turbine was generated. It had only two or three blades at max. So the water that passes through the turbine, if the fishes are present in it, they don't get killed by the blades. Okay. And what is the advantages or disadvantages if we place number of bucket or blade greater than three? You tell that you have used three number of blade. So actually, if we use more number of blades, there's a maximum chances of probability that the fish may get killed. Only to counter this issue, this is a fish friendly turbine. Okay. So the farmers can agriculture the lands as well as they can also make the fish farming also. Okay. To utilize both these facilities, this turbine was generated, and they will also generate electricity. Okay. And the working principle of turbine, which are you used? It should be impulse or reaction, something. So actually, it is the basic working principle is the free vortex, but we can generalize it as impulse turbine because the velocity of the water is only utilized in order to generate the electricity. So the turbine is in a funnel shaped parabolic structure. So when the water in the canals at a high velocity, they enter circumferentially into the turbine. Okay. And the as the structure is in paraboloid structure, so the when it moves circumferentially, it forms a whirlpool. So Okay. the velocity at the center will be at maximum. Okay. So in the axial direction, we attach a shaft, and where we had two or three blades at maximum. On a rotor. Yes, sir. Okay. So that Sure. And the difference between free and force vertex concept. so in the force vortex, we generally give the power to the turbine. So for example, any rotor, we give the power to the rotor, and that rotor only rotates the water. Okay. But in case of free vortex, the energy that contains in the water helps the rotation inside the rotor. Okay. And if we used, suppose in a turbine, if we use a converging type of casing, and we can utilize pressure energy or मतलब इट मीन्स आई विल जस्ट आस्क यू कि आपने जो है वो यहाँ पर ये बोला कि आपने फ्री वर्टेक्स और पैराबोलाइड शेप जो है वो फॉलो किया और उससे जो है आपने एक तरह से काइनेटिक एनर्जी को रेज किया और उस हाई काइनेटिक एनर्जी को जो है आपने बकेट के सरफेस पे आपने यूटिलाइज किया। तो मेरा सिंपल सा ये आंसर है कि क्वेश्चन है कि अगर मैं इसके सरफेस को जो है एक केसिंग से कवर कर दूं, यानी कि एक मतलब कन्वर्जिंग टाइप ऑफ केसिंग लगा दूं, ठीक है, तो क्या मैं प्रेशर एनर्जी को भी यूटिलाइज कर सकता हूं क्या ब्लेड के सरफेस, या क्या प्रॉब्लम होगा अगर मैं ऐसा करने लूं? इफ प्रेशर को आप यूटिलाइज हम करेंगे तो देयर इज अ चांसेस दैट प्रेशर मींस when the pressure gets converted into mechanical energy to the rotor, so the pressure may decrease very less, so that the cavitation chances may happen. ओके तो हम कैविटेशन का सेफ्टी रखेंगे ना, मतलब इट मींस कि हम उस प्रेशर के बियॉन्ड नहीं जाएंगे ना, मतलब जितना हम कन्वर्ट कर सकते हैं उतना हम करेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू द थॉमा कैविटेशन थ्योरी कि हम उतना ही कन्वर्ट करेंगे जिसपे अपना कैविटेशन होने का जो चांसेस है वो अपन क्या कर सके, उसको अवॉइड कर सके, मतलब अबव जितना प्रेशर है वेपर से उतना ही अपन कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम और ज्यादा पावर जो है जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर। यस वो तो है। ऐसा आपने कुछ ट्राई किया क्या, मतलब सोचा ऐसा कि ऐसा हम करें तो थोड़ा सा और पावर आउटपुट बढ़ जाए हमारा, तो एक तरह से और एडवांटेज। हाँ, yes, it is a good idea, but we have not tried for that.
अच्छा नहीं किया, ओके ठीक है। दीपराज सर स्टार्ट करते हैं फिर टेक्निकल, आप पहले शुरू करो फिर मैं शुरू करता हूँ सर। ठीक है। So Soumya, as you told me, your out of favorite subject, one subject is mechanics of solid. That is your strength of material. Yes, sir. Okay. So can you tell me that bending stress distribution, Yes, sir. bending stress distribution, the variation of that distribution is what kind of the variation we can achieve there? So generally they are of linear distribution. Okay, linear distribution. And what is the distribution for the shear stress in the beam? Shear stress is generally parabolic. In nature. Okay. Then shear stress in the shaft, Sorry? distribution of shear stress in the shaft. In the shaft, the shear stress distribution is linear. Linear. What will be the shear strength distribution? Shear strength distribution in the shaft. So for uniform strength, we can assume that the strength distribution will be linear. Okay. So like I have 3 sheets, है ना? मेरे पास 3 sheet है, इस तरीके से है कि एक के ऊपर एक को इस तरीके से मैं रखा हुआ हूँ, ओके। एंड मैं कह रहा हूँ कि सेम थिकनेस का एक दूसरा शीट, ये 3 sheet है, उसी के बराबर टोटल बराबर उतने ही थिकनेस का सेम मटेरियल का दूसरा शीट, यहाँ पे 3 sheet लगा हुआ है, यहाँ पे एक शीट, दोनों में मैं सेम लोड अप्लाई कर रहा हूँ, लोड बढ़ा रहा हूँ, कौन सा स्ट्रक्चर मेरा पहले फेल होगा? So in that the three stages are there. They are attached to each other or मतलब वो welded होके हैं या अलग अलग है? अलग अलग है। तो अलग अलग है मतलब इसमें ही ज्यादा मतलब ज्यादा ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है strength because the bending strength will be dependent on each individual thickness. Okay. So मतलब for every sheet, 3 thin sheets, so we will have a radius of curvature. And as the sheets are thin, we can say that the maximum distance from the neutral point is also less. So there is a chance of failure of those joints. But in the large case, the total thickness is very large. So the distance from the neutral point to the outward point is more. So बेंडिंग स्ट्रेस का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू फेल बिकॉज ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप। yes, sir. Okay. So the formula of bending stress is directly proportional to what? The bending stress is directly proportional to the distance from the neutral axis. Neutral axis, yes, sir. Here the distance is less. Here distance is more. So in this case, where the single sheet, I'm taking the single sheet in the consideration. उसपे आपका जो y है, that your distance from the neutral axis वो ज्यादा होगा, ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होना चाहिए यहाँ पे। yes, sir. यहाँ पे कम होगा। No, actually, this is the what we calculate I by y, which is the section modulus. That is the that depicts the strength of the beam. So whose Z is more, the strength is more of that section. Okay, so in this is more, then strength will be more. Yes, sir. Okay, ठीक है। कैसे? Yes, in this single shed, the Z will be more. So that's why I think strength is more. Strength is more in the single shed. Yes, sir, single shed. बट तो आप तो पहले कह रहे थे कि पहले से होगा। No, strength is more, but
so if strength is more, resisting strength is more, so it less chances that it will get fail. सॉरी, जो सिंगल सीट है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मतलब उसका लेस प्रोबेबिलिटी है फेल्यूर के लिए, बट जो 3 इंडिविजुअल सीट है उसका स्ट्रेंथ कम हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इज मोर। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर के बारे में और भी बातें करेंगे, है ना, सर जी बात करेंगे। मुझे कुछ क्वेश्चन जो ध्यान आता है, जो मैं पूछना चाहता हूँ, एकदम सिंपल क्वेश्चन कि यार, डू यू नो फिन? Yes sir, कैन यू डिफाइन इट? so they are the protruding surface from a wall or any surface that enhances the heat transfer through the surface as they increase the area of heat transfer. तो अगर मैं कहूँ कि जैसे कि हीट ट्रांसफर बढ़ाने के लिए हम फिन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिन्स सरफेस के आउटसाइड होने चाहिए कि इनसाइड होने चाहिए? तो सरफेस के आउटसाइड ही होना चाहिए। आउटसाइड मीन्स जिधर हीट जनरेशन हो रहा है उधर नहीं, उसके अपोजिट साइड। सॉरी, जिधर हीट जनरेशन हो रहा है उधर नहीं, उसके अपोजिट साइड, यही कह रहे हो ना? मतलब दोनों साइड भी हम डाल सकते हैं, मतलब जो भी सरफेस एटमॉस्फेयर के लिए एक्सपोज है, जहाँ हीट ट्रांसफर होने के लिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसी सरफेस में ही हम डालते हैं। ओके, हाँ, कुछ कह रहे हैं सर आप? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे आपने मे बी कार का रेडिएटर देखा होगा सौम्या। यस सर। कार का रेडिएटर जो होता है उसमें हम फिन्स जो होते हैं वो इनसाइड प्लेस करते हैं इन प्लेस ऑफ आउटसाइड। मतलब उसमें जो है कार के रेडिएटर में जो है फिन्स और हम आउटसाइड रखते हैं, इनसाइड नहीं रखते। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं सर? मतलब वो इनसाइड वाला सेक्शन वहाँ इंजन रहता है तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है। बिल्कुल, टेम्परेचर डिफरेंस इज आल्सो ए क्राइटेरिया फॉर हीट ट्रांसफर। बिल्कुल। और तो आउटसाइड रखेंगे तो एनवायरनमेंट के लिए एक्सपोज रहेगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस विल बी मोर, सो हीट ट्रांसफर। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ सौम्या, मान लो सपोज दैट मुझे हीट ट्रांसफर करवाना है और फिन को यूज करना है, ठीक है। मेरे पास दो कंडीशन है, दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन है मतलब ग्राउंड पे जहां पर एयर की वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है, मान लो सपोज दैट 10 मीटर पर सेकंड है अगर ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें। और एक मेरा हिली एरिया है, मतलब हिल पे है स्टेशन कोई, जहां पर अपना एयर का वेलोसिटी काफी फास्ट है, सपोज दैट 100 मीटर पर सेकंड है। तो कहां पर फिन यूज करना ज्यादा डिजायरेबल होगा? बेस टेम्परेचर दोनों पॉइंट पे सेम है, मतलब बेस टेम्परेचर अर्थ पे भी जैसे मान लो एक फर्नेस है और फर्नेस को मुझे कूल करवाना है और मुझे उसमें फिन्स को लगाना है। अब फर्नेस मेरी ग्राउंड पे है और एक मेरी हिल पे है, ठीक है। और फर्नेस का जो बेस टेम्परेचर है वो दोनों पे मान लो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कहां पर ज्यादा डिजायरेबल होगा, यानी कहां ज्यादा इफेक्टिव फिन जो है वो देखने को मिलेगा, ग्राउंड पे या हिल पे? सर ग्राउंड पे इंस्टॉल करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज द वेलोसिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। बिल्कुल। तो as per the effectiveness, we need effectiveness at least more than 2. So if effectiveness is more than 2, we can justify that we have use the fin rightly. Okay. So in the effectiveness, it is a ratio of Q fin and Q without fin. Without fin, बिल्कुल। By deriving the formula, we get to know that it is inversely proportional to heat transfer coefficient. बिल्कुल ठीक है। So where heat transfer coefficient is high, if we use, the effectiveness will be low. बिल्कुल ठीक है। So we need to justify that we are using the fin for its beneficiary, and we need to use it where heat transfer coefficient is low. Sure. सौम्य, अपना फिन यूज करने का जो पर्पस था ना वो इनहांस द हीट ट्रांसफर था, मतलब कन्वेक्शन के हीट ट्रांसफर को बढ़ा देना। Yes sir. फिर आप ये बोल रहे हो कि जो इफेक्टिवनेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच के है। Yes sir. तो ये कंट्राडिक्शन पॉइंट नहीं हो गया? मतलब हम फिन को यूज कर रहे हैं हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाने के लिए, और जो हम कर रहे हैं वो हमारे मतलब जो हम मतलब वहां पर फिन यूज कर रहे हैं वो कन्वेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, उसका जो कोएफिशिएंट है। Sorry sir, power cut. One.
हाँ सर। तो मतलब we can use fins in both the cases, but it will be effective. In the case where it is hilly area, the heat transfer coefficient is by defaultly very large. बिल्कुल। So without using the fin also we can transfer the heat to how much we can. But in the ground level, heat transfer coefficient is already low. So the heat transfer is very low. So that's why. बिल्कुल बिल्कुल ये बोल सकते हो रीजन जो है, क्योंकि फिन का हम यूज तभी करते थे जब हम कन्वेक्शन के ट्रांसफर को बढ़ा नहीं पाते थे, तभी हम एक्सटेंडेड सरफेसेस के लिए जाते थे। अब मान लो सपोज दैट कहीं पर एच पहले से ही लार्जर है, तो वहां पर फिन यूज करना थोड़ा सा लेस इफेक्टिव होगा, इसीलिए इफेक्टिवनेस जो है वो इनवर्सली आती है। जहां पर एच पहले से है तो वहां पर हम फिन को यूज नहीं करेंगे या उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखेगा। वहीं पर ज्यादा इफेक्टिव होगा जहां पर एच हमारा क्या होगा, कम होगा, इसलिए वो इनवर्सली रिलेशन आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सौम्या फ्लूइड मैकेनिक्स लिखा है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, थर्मोडायनामिक्स है एंड हीट ट्रांसफर है, तो सबसे पहले मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से ये पूछूंगा कि आपका सबसे मेजर मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा है, जैसे मैं कुछ पूछूं मतलब तो सबसे प्यारा लगता हो कि यहाँ से अगर आप कुछ मुझसे पूछोगे तो 100% मैं उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में जो है वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई भी XYZ टॉपिक फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स। I think fluid kinematics or fluid dynamics. अच्छा, फ्लूइड काइनेमैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। चलिए, तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जस्ट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड वर्टिसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और वर्टिसिटी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? Vorticity, it decides how much rotation the fluid element can pursue. But angular velocity, I think it denotes the rate of rotation of the fluid element. ओके, ठीक है, एक बार देखिएगा, हम वर्टिसिटी को ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्यों लिखते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, हम 2 टाइम ही क्यों लिखते हैं? व्हाट इज रीजन? पहले क्वेश्चन का आंसर यही है, सेकंड क्वेश्चन। So actually, I think that actually the angular velocity is the difference between the derivatives of the fluid elements. So why, as it is angular velocity is taken to be half of that half of the difference of partial derivative of the fluid elements. So that's why angular velocity is the average rotation rate, whereas verticity is the actual rotation rate. ठीक है, inside a flow field. वॉइस चला गया। हेलो, यस सर। ओके, ठीक है, मैं बात करता हूँ, है ना? आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गया, तब तक मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो सौम्या, जैसे कि सर बात कर रहे थे, है ना, फ्लूइड के बारे में बात कर रहे थे, मैं बस वापस आता हूँ। एक बेसिक सर चीज मेरे मन में डाउट था, तो मैं सोचा कि आप इतना अच्छा बता रहे हैं तो आप क्लियर कर देंगे, है ना? यार मेरे पास ना एक वायर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, और मेरे पास ना एक पाइप है जिससे स्टीम फ्लो हो रहा है, ठीक है। मुझे दोनों जगह इंसुलेशन का मुझे क्या चाहिए कि ये जो वायर है उस पे जो करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वहां से आपका जो हीट जनरेट हो रहा है उसको मैं ट्रांसफर करना चाहूंगा कि रोकना चाहूंगा? ट्रांसफर करना चाहूंगा। हाँ, we will need to transfer that. So that wire जाएगा। ओके, और जो आपका स्टीम पाइप है वहां से हीट ट्रांसफर करना चाहूंगा कि रोकना चाहूंगा? सर रोकना चाहेंगे हम।
मतलब डिपेंड करता है, मतलब कौन सी फैक्टर के लिए हम यूज कर रहे हैं वो पाइप। अगर वो मतलब दूसरे मतलब वो उसका स्टीम का जो हीट है वो दूसरे पाइप को हीट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर ही करना चाहिए। ओके, मैं चाहता हूँ स्क्रीन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाना विदाउट लूजिंग इट्स एनर्जी, दैट आई तो एम वी नीड गोइंग टू टू। ट्रांसफर, यस। ओके, तो ये वाला जो पाइप है अपना स्टीम पाइप, उसमें इंसुलेशन लगाना चाहिए नहीं लगाना? सर दोनों केस में लगाना चाहिए। अ, तो मतलब जो सिर्फ थिन वायर है उसका जितना जितना हम रेडियस ज्यादा बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से उसका हीट हीट ज्यादा मतलब रिलीज हो जाएगा, so the wire will be saved. But in case of the pipe, as it is a hollow object, so if we are providing outer insulation to it, so we need to provide the insulation greater than the critical radius, which is decided by the thermal conductivity of the insulating material and the heat transfer coefficient. So हमें एटलीस्ट क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा रखना चाहिए। सौम्य, ये क्रिटिकल रेडियस वाला जो पॉइंट है या कॉन्सेप्ट जो है, ये पिक्चर में क्यों आता है? Sir, because in case of the hollow cylinder or hollow pipes, so the heat transfer is due to two factors. One is due to the conduction between the two layers of the pipe, and another is the heat transfer coefficient. So if we increase the radius, so we can see that the thermal conductivity, the heat transfer due to thermal conductivity, it increases as the ratio of R2 by R1 increases. But the heat transfer due to heat transfer coefficient, it decreases, because as the area increases, as the radius increases, the heat transfer coefficient also decreases. So to balance that, we introduce the concept of critical radius. तो सौम्य, अगर हम किसी पाइप पे आउटर इंसुलेशन करने की जगह अगर हम इनर इंसुलेशन कर दें तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? इनर इंसुलेशन केस में क्रिटिकल रेडियस क्या? जैसे मान लो कोई एक स्टीम पाइप है, तो स्टीम पाइप में डिजायर्ड क्या होता है कि हम जो हीट को बाहर लीक नहीं होने देंगे। तो आउटर इंसुलेशन करने की जगह अगर हम इनर इंसुलेशन कर दें तो क्या क्रिटिकल रेडियस का कॉन्सेप्ट आएगा क्या पिक्चर में? No, sir. क्यों नहीं आएगा? So because the heat is not radiated, I mean not transferred outside, so मतलब कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, बस कंडक्शन ही आ रहा है। नहीं तो ओके, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। दीपराज सर। ठीक है सौम्य, थर्मोडाइनमिक्स से एक बेसिक क्वेश्चन है ना। मेरे पास दो रूम है ना, दो इंसुलेटेड रूम। ओके सर। दोनों में सेम फ्लूइड है, सेम मास, सेम वॉल्यूम, सब कुछ सेम। यस सर। एक में मैं लगा रहा हूँ हीटर ऑफ द सेम पावर, लेट अस अज्यूम 100 वॉट। एक में लगा रहा हूँ मैं फैन, लेट अस अज्यूम 100 वॉट का, ये भी सेम पावर का फैन है। ठीक, दोनों रूम में जो इनिशियल टेम्परेचर है वो सेम है, दोनों रूम में इनिशियल टेम्परेचर सेम है। एक में मैंने लगाया हीटर, एक में लगाया मैंने फैन, है ना, दोनों का पावर सेम है और मैंने ऑन किया। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब मैं ऑन करूंगा तो कौन से रूम का जो टेम्परेचर है, एक फाइनल टेम्परेचर मैं चाहता हूँ मतलब बढ़े, जैसे कि अगर इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री होगा तो फाइनल टेम्परेचर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड चाह रहा हूँ, तो कौन से रूम में 40 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा सबसे पहले, हीटर वाले में या फैन वाले में? क्वेश्चन समझ में आए? हेलो हेलो। हाँ सौम्य, क्वेश्चन समझ में आया? सर थोड़ा बीच में इंटरप्ट हो गया है, नेटवर्क थोड़ा मतलब सुनाई नहीं दिया क्लियर। अच्छा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, है ना। यस सर, सॉरी। हमारे पास दो रूम है, हाँ। एक में मैंने क्या लगाया, हीटर लगाया, एक में मैंने क्या लगाया, फैन लगाया। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर बाकी प्रॉपर्टी भी मैंने बोला सेम है। यस। दोनों को मैंने ऑन किया, ओके। तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा? बढ़ेगा।
बढ़ेगा, फैन वाले में भी बढ़ेगा, Yes, sir. इंसुलेटेड रूम है, कंप्लीट Yes, sir. ये भी बढ़ेगा, यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं। Yes, sir. मेरा सवाल ये है कि दोनों में अगर इनिशियल टेम्परेचर सेम है, Okay. फाइनल टेम्परेचर मुझे कुछ चाहिए TF, लेट अस अज्यूम 40 डिग्री, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री। ये है कि जब मैंने ऑन किया दोनों को, एक हीटर हो गया एक फैन हो गया, दोनों को ऑन किया, तो कौन से रूम में मैं 40 डिग्री पहले अचीव करूंगा, कम टाइम कौन से रूम में लगे, फैन वाले रूम में या हीटर वाले रूम? So I think in both the cases we'll attend it as the power of both are same. I think in both the cases we'll attend at the same time. Okay, very good. Why पावर सेम है तो सेम क्यों अटेंड करेगा ऐसा आप? So as per the first law of thermodynamics, so the how much work input we have given, so that much heat also we are going to generate. So the heat may be internal or external. As the external form of heat is zero because it is insulated in both the cases. So the internal energy of both the rooms will be equal to the power in the both the rooms. So as the power is same, so internal energy will. अच्छा, आप एंट्रोपी को डिफाइन कर सकते हैं? Entropy is just the randomness of the environment, I think. Randomness of environment. Definition अलग होगी. आगे पूछो एंट्रोपी में. Yes, sir. ठीक है, डेफिनेशन चेक करना पड़ता है. आगे मैं बात करता हूँ. एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन? पॉइंट फंक्शन. ऑलवेज. Entropy generation is a path function, but entropy change is a point function. Okay. What is the formula for the entropy? Sorry? What is the formula for entropy? So entropy actually is the change in entropy is the rate of change of heat with respect to time and plus the entropy generation. Always? Yes, sir. Reversible, irreversible को कुछ फर्क पड़ने वाला? No. This formula is applicable everywhere. In case of reversible, the entropy generation will be zero. So the change in entropy is the net change of heat with respect to temperature. Okay. सवाल आ रहा है लग रहा मुझे. बिल्कुल. सौम्या, जैसे हम काइनेमैटिक्स में थे तो एक बार मैं एक दो क्वेश्चन और वहां से पूछता हूँ, ठीक है? तो काइनेमैटिक्स में जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था उस समय जब डिस्टरबेंस हुआ था कि मान लो दो कंडीशन है आपकी, एक आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो है. तो पहले दोनों के लिए कंडीशंस क्या होती है, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए क्या कंडीशंस होती है? So for incompressible flow, the Mach number should be less than 0.3. 0.3, okay. And for incompressible fluid, the change in density should be less than 0.05, means 0.5%. Okay, or we can say bulk modulus must be a 0. ठीक है? सॉरी, कंप्रेसिबिलिटी जो बीटा होता है वो 0 होना चाहिए. चेंज ऑफ डेंसिटी क्या होगा? 0 होगा. ओके, ठीक है. अब मान लो सपोज दैट एक कोई फ्लूइड है, ठीक है, वो इनकम्प्रेसिबल है. तो उसका फ्लो क्या होगा? ठीक है, पहला. और मान लो कोई एक फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो वो फ्लूइड कैसा होगा? ठीक है. Sir, I think for the incompressible fluid, the flow can be incompressible as well as incompressible. Okay. But in case of if the flow flow is incompressible, vice versa. If flow is also incompressible, the fluid can be compressible. ओके, तो इसको एक बार सौम्या देखिएगा, ठीक है? इसको एक बार थोड़ा सा चेक करिएगा जो अभी मैंने पूछा है. दूसरा, फ्लो फील्ड में डाइवर्जेंस अगर वेलोसिटी वेक्टर का 0 होता है तो ये क्या सिग्निफाई करता है? मान लो डेल डॉट v अगर 0 है तो ये क्या सिग्निफाई करेगा? Sir, because it is incompressible. Incompressible.
It follows the continuity equation and it is इट फॉलोज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जीरो होता है, आपने काइनेमैटिक्स में क्या वैलोमेट्रिक स्ट्रेन रेट को पढ़ा है क्या? sorry वैलोमेट्रिक स्ट्रेन रेट, volumetric I'm not able to अच्छा ओके ठीक है, एक बार इसको देखिएगा, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर और मान लो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं यानी कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, तो कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अगर जीरो होता है देन ये क्या सिग्निफाई? it is irrotational बिल्कुल, कर्ल इररोटेशनल सिग्निफाई करता है और डाइवर्जेंस या डॉट जो होता है ये इनकम्प्रेसिबिलिटी को शो करता है किसी फ्लो की, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो है एक बार आप देखिएगा, ठीक है चलिए। अच्छा, मान लो फ्लो में अगर हमें सर्कुलेशन को डिफाइंड करना हो, सर्कुलेशन, तो हम सर्कुलेशन को फिजिकली क्या बता सकते हैं? it is the product of vorticity and area ओके ये तो एक मैथमेटिकल मतलब फॉर्मूला हो गया कि मतलब आप भी वही बताओगे, आपसे पहले वाला भी वही बता के आएगा, आपके बाद कोई जाएगा वो भी यही बताएगा, तो इसमें नया क्या आपने बता दिया हमें? so I can मान लो एक फ्लो जो है वो इररोटेशनल है, तो उसका सर्कुलेशन क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो? so it can be non-zero ठीक है, एक बार देखिएगा, क्योंकि मैं अभी उन्हीं टॉपिक से पूछ रहा हूँ जो आपने मुझे बोले हैं, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो अभी मैं काइनेमैटिक्स से पूछ रहा हूँ, काफी क्वेश्चन है अभी पूछने के लिए। ठीक है चलिए, तो डायनामिक्स में अगर मैं बात करूं तो पहले मुझे ये बताइए कि फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है? फ्लूइड हमेशा कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है? so higher potential to lower potential हाई पोटेंशियल टू lower potential लोअर पोटेंशियल। ओके, ऐसा क्यों होता है? फ्लूइड हायर टू लोअर ही क्यों फ्लो करता है, लोअर टू हायर क्यों नहीं कर जाता? so lower to higher flow कर सकता है provided we supply some external form of एक्सटर्नल पावर। ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्पॉन्टेनियसली क्यों नहीं करता है, मतलब विदाउट एक्सटर्नल पावर कर जाए, क्या प्रॉब्लम है, क्या लॉजिक क्या होता है, क्यों नहीं कर पाता है? that is the law of nature only लॉ ऑफ यूनिवर्स। ओके, अब लॉ ऑफ यूनिवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है चलिए। एक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो आप देखिएगा, एवलर और बर्नौली दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मतलब अगर मैं बात करूं एजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, so in Euler it has not assumed that the flow density of the flow is constant but Bernoulli it is assumed that the density is constant बर्नौली इक्वेशन का हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? so it represents a form of energy or head you can say एनर्जी हेड। yes sir ओके, आपने वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ा है क्या? yes sir पक्का क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेंचुरी से, yes sir कंफर्ट हो? yes sir ठीक है, वेंचुरी मीटर में जो कन्वर्जिंग कोण होता है, कन्वर्जिंग जो लेंथ होती है वो डाइवर्जिंग सेक्शन से कम होती है, yes sir ठीक है, मतलब कन्वर्जेंस कोण जो होता है वो डाइवर्जेंस कोण से छोटा होता है। ये एंगल के टर्म में बोल सकते हो कि कन्वर्जेंस का एंगल ज्यादा होता है, डाइवर्जेंस का एंगल क्या होता है, कम होता है। yes sir ऐसा हम क्यों करते हैं? sir to avoid flow separation टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन। yes और कुछ? फ्लो सेपरेशन अगर होगा तो मतलब बाहर से अंदर तक फ्लो भी हो सकता है, मतलब अंदर का एज एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट इज देयर इन द डाइवर्जेंस सेक्शन सो एडवर्स तो डाइवर्जेंस में होता ही होता है, वो तो पूरे डाइवर्जेंस में एडवर्स कंडीशन आपको मिलती है, डीएक्सेलरेटिंग कंडीशन होती है। सो मतलब प्रेशर मतलब नियर टू द थ्रोट इन टुवर्ड्स द डाइवर्जेंस सेक्शन देयर मे बी पॉसिबिलिटी इट मे बिकम सो मच लो दैट फ्लूइड फ्रॉम आउटसाइड कैन आल्सो एंटर द इनसाइड। नहीं, आउटसाइड कैसे एंटर कर जाएगा, वो तो बाहर पाइप है ना पूरा का पूरा, अब उसमें पाइप पोरस थोड़ी ना है, उसमें होल थोड़ी ना है, आउटसाइड से कैसे एंटर कर जाएगा? पाइप इज नॉट अ पोरस पाइप, पाइप तो सिंपल है ना, होल थोड़ी ना उसमें। आपने बोला एयर एस्पिरेशन कैन आल्सो टेक प्लेस। ओके, आपने बोला कि फ्लो सेपरेशन करवा मतलब अवॉइड करना होता है,
लेकिन अगर आप देखोगे, मान लो मैं बोल रहा हूँ ठीक है चलो फ्लो सेपरेशन मुझे नहीं चाहिए, तो डाइवर्जेंस सेक्शन ऐसे होता है, मान लो कर्वेचर ऐसे है, तो जहां पर डाइवर्जेंस एंड हो रहा होगा वहां पर पाइप होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल। Yes, sir. ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर फ्लो सेपरेट नहीं करेगा डाइवर्जेंस के एंड पे, तो वो पाइप में कभी इंटर ही नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर मान लो फ्लूइड जो है वो वॉल डाइवर्जेंस सेक्शन का जो वॉल है, अगर उसको फॉलो करेगा उस कर्वेचर को, उस प्रोफाइल को, और अगर वहां से सेपरेट नहीं हुआ, तो वो हॉरिजेंटल पाइप में कभी इंटर ही नहीं कर पाएगा, वो वहां रुक जाएगा फिर जहां पर पाइप स्टार्ट होगा। और अगर वो रुका तो उसके पीछे का सारा फ्लो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड इस कंडीशन में हमें ह्यूज लॉस बियर करना पड़ेगा। और अगर लॉस होता है तो CD ऑफ वेंचुरी इज नेवर नेवर 0.98। 0.98 का मतलब समझते हो? 0.9 0.94, कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उस तक हम पहुंच जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम अपने को मिल रहा है, Yes, sir. लॉस बहुत मिनिमम है। Mhm. तो आप बोल रहे हो कि सेपरेशन जो है वो हमें नहीं चाहिए, जबकि यहां पर सेपरेशन चाहिए। अगर डाइवर्जेंस सेक्शन से सेपरेट नहीं होगा तो ये पाइप में कभी जा ही नहीं पाएगा। So as the angle is very much less at 5 to 6 degree of divergence, so I think it can be near to the horizontal only. ओके, So, ये एक बार देखिएगा, मतलब दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। सेपरेशन चाहिए होता है, रिवर्स फ्लो को अवॉइड करना होता है, उसके बेसिस पे हम डाइवर्जेंस और लेंथ को जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो पिटॉट ट्यूब में, तो पिटॉट ट्यूब जो है वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करती है? stagnation at the stagnation point. गुड गुड गुड। स्टैग्नेशन हम कैसे अचीव करते हैं फ्लो फील्ड में? मतलब क्या क्राइटेरिया होता है स्टैग्नेशन लाने का? So we need to make the velocity to be zero. That is the वेलोसिटी stagnation. जीरो। Yes, sir. मतलब स्टैग्नेशन हम लाते कैसे हैं, मतलब कौन सी प्रोसेस को फॉलो करके स्टैग्नेशन हम अचीव करते हैं? So by creating obstruction in the flow field. अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन एंड फ्लो फील्ड। चलो मैं पूछ रहा था, आपने में भी आइसेंट्रोपिक के बारे में सुना होगा कि रिवर्सिबल एंड बाहर से हम सिस्टम को क्या कर देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, पिटॉट ट्यूब को मान लो पूरे पाइप में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आइडियल लोकेशन क्या होगी जहां पर मैं पिटॉट ट्यूब को फिक्स करूं पूरे पाइप के अंदर, और क्यों? पिटॉट ट्यूब का इनलेट जो है पूरे पाइप में सबसे आइडियल लोकेशन कौन सी होगी? Yes, sir. ओके, देखो पिटॉट ट्यूब जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा कि अगर हम सेंटर लाइन पे प्लेस करते हैं तो सेंटर लाइन पे नॉन विस्कस होता है, क्योंकि सेंटर पे शियर क्या होती है आपकी, जीरो होती है। ठीक है, तो हमेशा पिटॉट को हम सेंटर लाइन पे प्लेस करते हैं जिससे लॉसेस क्या हो सके, मिनिमम। No, I thought in the lengthwise where we should place. ओके ओके, I assume the cross section. सर। हाँ, मैं कुछ बेसिक सवाल ही पूछ कर रहा हूँ, मैं उसी में कंटिन्यू करता हूँ। थर्मोडाइनमिक्स में एक होता है थ्रोटलिंग प्रोसेस, कैन यू डिफाइन इट? The throttling process is a process where we, without changing the enthalpy of the ideal gas, we reduce the pressure. आइडियल गैस। Yes, means without changing the enthalpy of the enthalpy in the process, we can reduce the pressure. Can I use this throttling process for any other fluid apart from the ideal gas? Yes, we can use. Okay. And But have the we difference is analyzed that in case of ideal gas, the temperature also will be constant. But in case of any gas, there may the temperature may increase or decrease based on the Joule-Thomson law. okay, in case of ideal gas, temperature is also constant, but in other case, the temperature will not constant. Okay. So it will depend upon the Joule-Thomson law, whether it will increase or decrease. Is it isothermal process too for the ideal gas? Yes, for ideal gas it is isothermal. It can be assumed as What is the isothermal process? the temperature remains constant in the process. Throughout the process? Yes, sir.
In the throttling for the idea that temperature will constant throughout the process, or it will change. And initially it So will initial, go. yes, yes, it will be at the initial and final point. The temperature will be constant, but not throughout the process. It is not isothermal. Sorry. Okay, it is not a. So सौम्य, अगर मैंने कहा कि आपने बोला कि थ्रोटलिंग का, अच्छा थ्रोटलिंग का एक एग्जांपल दे दीजिए मुझे, उसके बाद मैं बात करूँ। So it is used in the refrigeration cycles. A throttle valve is installed after the condenser in order to get the pressure. फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ Yes, अल्टीमेटली। yes, ओके, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक क्या ओरिफिस है, एक ओरिफिस है, दैट इज योर स्मॉल ओपनिंग, yes, sir. है ना, वहां से मेरा वाटर आ रहा है, वहां से मेरा वाटर आ रहा है। और थ्रोटलिंग में अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते हैं कि नेग्लेक्ट कर देते हैं? Kinetic energy is not considered. The kinetic energy and potential energy both are considered in terms of flow work. इन टर्म्स ऑफ Flow work. फ्लो वर्क, तो एंथैल्पी कैसे कांस्टेंट रहेगा फिर? अच्छा, मुझे ना स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं, एंथैल्पी के बारे में बताओ कि एंथैल्पी कैसे कांस्टेंट रहेगा प्रोटीन Sir, in the throttling process, as we know, the enthalpy is the summation of the flow work as well as the internal energy. So during the throttling process, while we start decreasing the pressure, so the flow work get decreases, so the temperature gets increases as the internal energy increases, and it up to a certain extent the flow work continuously decreases and temperature increases, and then the temperature starts decreasing and the flow work increases. So what is flow work? What is flow work? So the work developed by the fluid while flowing. While flowing. Yes, it is due to the pressure of the fluid. Can you just express it mathematically? Flow work. So enthalpy is the summation of internal energy plus flow work, H equals to U plus PV. So flow work सौम्य, क्या हुआ? एंथैल्पी क्या सिग्निफाई करता है? Sorry? एंथैल्पी क्या सिग्निफाई करता है? So the net heat content of a fluid. अच्छा, फ्लूइड। Of a flowing fluid actually. मैं कह रहा था कि आपका जो फ्लो वर्क है वो क्या पीवी को ही फ्लो वर्क कह रहे हो ना आप? अच्छा, तो ये फ्लो की वजह से मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये फ्लो वर्क आपका चेंज होने वाला है? मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये फ्लो वर्क पीवी चेंज होगा? हेलो, Yes, sir. हाँ, Hello. हेलो, Hello. हेलो, हाँ सौम्य, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आपका आ रहा है, मतलब मेरा। हेलो सर, he is disconnected now. हाँ, हाँ सौम्य, Yes, sir. हाँ हम बात कर रहे थे फ्लो वर्क के बारे में कि आपका जो फ्लो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्यों चेंज होगा? और जैसे आपने बोला कि छोटी प्रोसेस में मैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ फ्लो वर्क ले लेता हूँ, यही बोले ना आप? Yes, sir. अच्छा, तो कैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, फ्लो वर्क चेंज होगा, ये कैसे मैं बता सकता हूँ? Sir, because the pressure is decreasing in the throttling process, so the velocity is increasing in that process. So that affects the kinetic energy of the process. अच्छा, मतलब मुझे एक चीज बस यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है या प्रेशर कम हो रहा है, तो आपका वेलोसिटी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जो भी है। वेलोसिटी की वजह से जो आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा, वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आएगा
है ना, उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि प्रेशर चेंज हो रहा है और ये इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में आपका, सॉरी, फ्लो वर्क के फॉर्म में ये चेंज हो जाता है, ये कह रहे हैं आप? Yes, sir. श्योर? Yes, I think. यू थिंक तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है थ्रोटलिंग? No, it is not a reversible. अच्छा, For an तो ideal मतलब gas, it can be, but no, no, it is not a reversible, sir. For an ideal gas also, it's not reversible. आर यू श्योर? Yes, sir. अच्छा, आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट लाए थे? एंथैल्पी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट आ गया? So in ideal gas, the enthalpy is a function of temperature. So that's why for हमेशा constant. Yes, sir. हमेशा क्या For ideal है? gas, every time it is a function of. सौम्य, हम एयर को हमेशा आइडियल गैस क्यों मानते हैं? Sir, to make our calculations easier. और कुछ? No, sir. आइडियल गैस का डेफिनेशन क्या है, आप क्या पढ़ेंगे? आइडियल गैस की कंडीशन क्या होती है? Sir, it obeys the gas law. It obeys all the gas law, and टेम्परेचर, प्रेशर की कुछ कंडीशंस? pressure. The gas laws that pressure is proportional to temperature, and the velocity is proportional to temperature, and pressure is inversely proportional to volume. Those are the gas laws that the ideal gas obeys. The real नहीं, gas don't. सौम्य, टेम्परेचर और प्रेशर लेस होना चाहिए या हाई होना चाहिए या मीडियम होना चाहिए? Okay, so for any gas at low pressure and high temperature, it is assumed to be a लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, क्यों? तो क्यों? लेकिन एयर में ऐसा कुछ देखने को मिलता है क्या कि लो अरे हाई, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जैसा कुछ कंडीशन no, sir. नहीं देखने को मिलता? आपने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में अभी सुना होगा, जैसे अभी काफी कोविड की वजह से न्यूज में आ रहा है। तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को मतलब प्रोड्यूस करना, इट नॉट अ बिग चैलेंज। उसको होल्ड करना, आपने भी देखा होगा कंसंट्रेटर या जो टैंक है वो Cryogenic container. Yes. स्पेशल टैंक होते हैं जिनको हम क्रायोजेनिक टैंक बोलते हैं, क्रायोजेनिक, ठीक है। Yes, sir. तो वहां पर आपने सुना होगा लिक्विड ऑक्सीजन लीक कर गई और वो वेपर में कन्वर्ट हो गई, समथिंग ऐसा देखा होगा अभी आजकल न्यूज में आता रहता है, इंसिडेंट हो गया, ठीक Yes, है। sir. तो इससे कुछ बता सकते हो? मैं हिंट दिया हूं आपको, आप क्या बता सकते हो कि एयर आइडियल गैस क्यों है, समथिंग? So oxygen boiling point is around minus 188 degrees Celsius. बिल्कुल, So ठीक है। तो एक्चुअली एयर में मेजर जो कॉम्बिनेशन होता है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का होता है, और दोनों हमारे क्या होते हैं, क्रायो फ्लूइड होते हैं, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे बॉयल कर जाएंगे, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और उस टेम्परेचर पे जो प्रेशर रिक्वायर्ड है ना, डिजायर्ड, वो नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर तो 1 atm एम्बिएंट है, तो प्रेशर बहुत कम होता है, इसीलिए एयर को हम लोग जो है वो आइडियल गैस मान के चलते हैं, ठीक है। इसको एक बार और देखिएगा, काफी लोग पूछते हैं, देखा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है, सम लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द माय साइड। जी सर। टेम्परेचर स्केल आपको पता है? sorry. टेम्परेचर स्केल, Yes, sir. स्केल टेम्परेचर कौन कौन से जानते हो आप टेम्परेचर स्केल? Sir, thermometer, which is based on the pressure, and thermistor, which is based on the resistance of the fluid. ये सब तो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए ना, जिससे हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। मैं कह रहा Okay, हूँ कि fine. हाँ, So degree Celsius, degree Fahrenheit, Kelvin, and Rankine. अच्छा, ठीक है। तो मेरा एकदम लास्ट सवाल आपसे, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड, Degree क्या Fahrenheit and दोनों, डिग्री सेंटीग्रेड, yes, sir. क्या दोनों बराबर हो सकते हैं कभी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर? Sir, at minus 32 degrees. कितना? Sorry, minus 40 degrees Celsius. -40 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, Yes, -40। both. Minus 40 degrees Celsius equals to minus 40 degrees. ठीक है सर, मेरे से दैट्स ऑल। ओके सौम्या, जैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट टाइम कंस्ट्रेंट,
तो एक डायनेमिक्स का मैं क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन है। सपोज दैट एक हमारा टैंक है, ठीक है, एक टैंक है और उस टैंक में हमने वाटर को फिल कर दिया और उस टैंक के मतलब वाटर के सरफेस पे जो है एक हमने एम मास का कोई पिस्टन रख दिया, ठीक है, और एक वर्टिकल साइड में हमने एक होल कर दिया यानी ऑरिफिस, और हाइट जो है ये कैपिटल एच है। तो ऑरिफिस से जब वाटर जो है वो जेट के फॉर्म में जब बाहर आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं होगा। वो मेरा मतलब कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, हाँ एच रिजर्वायर, कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। रिजर्वायर, ओके, रिजर्वायर, एच इज कांस्टेंट बट as the water comes out the h starts decreasing. रिजर्वायर है, कांस्टेंट रहना चाहिए एच। अगर रिजर्वायर होता है तो हम एच कांस्टेंट ले लेते हैं। No, the height of the reservoir is constant but the water level is decreasing because the water comes out through the orifice. So the velocity I think it will be parabolically dependent on the height of the fluid. ओके, So with decreasing height the velocity will get reduces. ओके, तो वेलोसिटी अंडर रूट टू जी एच से ज्यादा होगी, कम होगी या उसके बराबर होगी? तो वेलोसिटी एक्चुअली वैरी ही करेगा, मतलब पहले इनिशियल इंस्टेंटेनियस कंडीशन में वो रूट ऑफ 2gh होगा जो h जो हाइट ऑफ द कंटेनर है। उसके बाद उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, मतलब अगर मान लो, पैराबोलिकली। ऊपर से मैं पिस्टन को रिमूव कर दूं देन क्या होगा? सर जो भी करने से यही कंडीशन रहेगा। कुछ भी कर दो आप, वही रिजल्ट आएगा। ओके, देन अगर मैं थोड़ा सा डायनेमिक्स में अगर बात करूं तो आपने देखा होगा जैसे ऑरिफिस मेटल में आपने सुना होगा एक होता है बीना कॉन्ट्रैक्टा, एक होता है थ्रॉड पॉइंट, ठीक है। तो थ्रॉड पॉइंट और वीना कॉन्ट्रैक्टा दोनों को आप कैसे डिफाइन करोगे? The Penna contracta is the section uh, where the area of cross section of the fluid is the least. But the throat point is where we is the point where we try to reduce the area to increase the velocity. नहीं, मैं समझा नहीं, थ्रॉड पॉइंट क्या होता है? मतलब थ्रॉट पॉइंट जो पॉइंट है वहाँ हम मतलब बाय डिफॉल्ट हम एरिया को रिड्यूस करते हैं जैसे तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन थ्रॉट पॉइंट के थोड़े देर बाद तो एरिया मतलब जो फ्लो में रिड्यूस होते जाएगा तो वो और ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, वही पॉइंट को वीना कॉन्ट्रैक्टा कहते वो वीना कॉन्ट्रैक्टा होता है। हैं। ओके, वीना कॉन्ट्रैक्टा क्यों बनता है? Because I think after the throat section, the area also once again starts increasing. So there exists some gap in the outward section of the pipe. तो इसलिए तो प्रेशर डिफरेंस थोड़ा क्रिएट हो जाता है, इसलिए शायद बना रहता है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा, सीसी, यस सर। वीना कॉन्ट्रैक्टा पे ये सीसी आपको क्या बताने की कोशिश करता है? मान लो मैं बोलूं कि सीसी इज इक्वल टू 0.8, तो ये 0.8 आपको क्या सिग्निफाई करता है? So it signifies the area of vena contracta with respect to the area of throat. मतलब 0.8 अगर होगा तो एरिया ऑफ थ्रोट अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो वेना कॉन्ट्रैक्टा एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलो। तो इन तीनों डिवाइस में जैसे अगर मैं कंपेयर करने जाऊं वेंचुरी, पिटॉट एंड ऑरिफिस, तो तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा होता है? वेंचुरीमीटर, बिकॉज उसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा रहता है, मतलब लॉसेस कम रहता है। जी, पिटॉट ट्यूब नहीं होता है। So pitot tube is actually different, it is used differently. When जो orifice meter and venturimeter we need to calculate the flow rate, but pitot tube is used to measure the velocity. तो उसका काम ही थोड़ा अलग होता है। ठीक है, सौम्य आपने मूडीज डायग्राम के बारे में पढ़ा है क्या?
Moody chart. It's, yes, I heard. I'm unable to recall. सुना है? वो टर्बुलेंट फ्लो में शायद था, शायद बिल्कुल। याद नहीं। बता सकते हो उसके बारे में कि वर्टिकल एक्सेस पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्या होता है, वहां से हम क्या निकालते हैं? ठीक है, No, I ठीक। don't know. वहां से आप नहीं बता सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पेरेंटल मिक्सिंग लेंथ के बारे में आपने सुना है क्या? पेरेंटल मिक्सिंग लेंथ Yes, I heard, but नहीं बता, कंफर्ट नहीं हो? no. ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बाउंड्री लेयर का जो कर्वेचर होता है आपने देखा होगा, देखा है बाउंड्री Yes, कर्वेचर? sir. Yes, sir. तो ये बाउंड्री लेयर कर्वेचर जो है ये एक स्ट्रीमलाइन होगा या नहीं होगा? मैं इस कर्वेचर को क्या एक स्ट्रीमलाइन बोल सकता हूं क्या? No, no, sir. We cannot say. क्यों नहीं बोल सकता? Sir, because we can, the definition of a streamline is that there should not be any mass flow rate across the streamline. बिल्कुल। So let us assume initially it is flowing through a velocity u in infinity. As it is a linear variation, but after some time where the boundary layer exists, the velocity is zero at the border where it is along the plate, and it is maximum at the boundary layer. So the velocity is not constant. Okay. So let us in the initial case the velocity is constant. Let us say 5 meter per second. Okay. But in this case the velocity varies from 0 to 5 meter per second. Okay. So the velocity, the flow rate is less in this case. Okay. Within the boundary layer. So as we know, the mass flow rate coming in should be the mass flow rate coming out. Okay. But the mass flow rate that is coming in has not come out. So some mass flow, some of the fluid discharges upward. So that's why it is not a standard. ओके, चलेगा। एंड बाउंड्री लेयर के अंदर अगर देखा जाए इनसाइड द बाउंड्री लेयर, तो दो स्ट्रीम लाइन का पैटर्न कैसा होगा? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, या कांस्टेंट रहेगा, या वी कैन नॉट डिटरमाइन? अगर दो कोई स्ट्रीम लाइन है तो वो बाउंड्री लेयर के अंदर कैसी दिखेंगी? डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी, कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी, या सेम डोमेन पे, मतलब सेम गैप पे जो है वो डाइवर्ज होगा। डाइवर्ज होगा, ऐसा क्यों? So because when we go along the plate, the decrease in velocity will be more. Means, for example, in the first 1 meter, the 5 meter per second is achieved in just 2 mm of boundary layer. Okay. But in the later half of the plate, it will be achieved at around 5 mm or 6 mm thickness. Same amount of velocity. So that's why the flow rate will be बिल्कुल बिल्कुल डाइवर्ज करता है। एंड बाउंड्री लेयर का कर्वेचर आपने देखा होगा, ये भी डाइवर्जिंग नेचर का होता है, मतलब बढ़ता है, डाइवर्ज करता है एरिया। अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंट पे जाओ तो हाइट अपनी जो है वो बढ़ती है। तो बाउंड्री लेयर का कर्वेचर ये डाइवर्जिंग नेचर का क्यों होता है? So the boundary layer grows as we move from the from the leading edge to the trailing edge. That's why boundary layer thickness diverges. चलिए चलिए चलिए, एक छोटा सा पॉइंट और जैसे बाउंड्री लेयर से आपने बॉडी के बारे में पढ़ा होगा। जैसे मान लो मैं बात करूं तो दो डिफरेंट टाइप के अपन शेप डिजाइन करते हैं। एक होता है एरोडायनामिक्स, जिसको हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं, और एक अपनी होती है ब्लफ बॉडी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? किसको हम एरोडायनामिक्स बोलेंगे, किसको हम ब्लफ बॉडी बोलेंगे? So the body where there is no flow separation or no eddy currents are developed. So in that type of flow, which types of design prefers that type of flow? So that is a streamline flow. But in case of bluff body,
the eddy currents are formed as well as the turbulence also is created. ओके, तो जो ये अपनी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इसमें जो ड्रैग होता है, इस ड्रैग में क्या प्रेशर का कोई कंट्रीब्यूशन होता है क्या? I don't think this has Oh. been done. देन जैसे मान लो बहुत सारे और भी पैरामीटर हैं, जैसे अगर आप बात करोगे सेपरेशन की, तो वो सेपरेशन में मेजर इशू क्या होता है? जैसे बाउंड्री अपनी सेपरेट हो जाती है, अपन बोलते हैं कि एडीज का फॉर्मेशन हो गया, वर्टेक्स सेटिंग हो गई, वर्टेक्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अगर आपको एक ही पॉइंट बताना हो, एक ही पैरामीटर बताना हो, तो आप किसको बोलोगे? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एक ही पूछा जाए, वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल हैं, बट अगर एक पैरामीटर आपसे पूछा जाए कि आप एक पैरामीटर बताइए जिसकी वजह से मेजरली बाउंड्री जो है वो सेपरेट हो रही है और आपको सेपरेशन देखने को मिल रहा है। So viscosity can be विस्कोसिटी। चलिए सर, ठीक है। ये तो रही बात टेक्निकल इंटरव्यू की। कुछ बातें टुवर्ड्स द एचआर। अगर मैं बात करूं आपकी हॉबीज क्या क्या, तो आप क्या बताएंगे? Sir, I love playing and watching cricket. क्रिकेट। क्रिकेट। Yes. क्रिकेट, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि क्रिकेट में एक टर्म आता है वैगन व्हील, Wagon wheel, yes. क्या होता है? So it depicts how much runs are scored in which section of the ground by a batsman. ओके, अच्छा ये बताओ, दो तरीके के फॉर्मेट शुरू से चलते आए हैं क्रिकेट में। अभी तो अब बहुत सारे फॉर्मेट हो गए, T20 हो गया, बीच में T10 भी खेल रहे थे लोग, है ना। मैं वनडे और जो अपना टेस्ट क्रिकेट है, वो दोनों फॉर्मेट के बारे में बात करता हूँ। जो टेस्ट क्रिकेट होता है वो रेड बॉल से खेला जाता है ना। Yes. और जो अपना वनडे क्रिकेट होता है वो व्हाइट बॉल से। अभी हम 3 बॉल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, जो अभी नया इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अपन रेड बॉल और व्हाइट बॉल के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों कि टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल से खेला जा रहा है और जो वनडे है वो व्हाइट बॉल। So जो पहले जब क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुआ था तो पहले टेस्ट क्रिकेट ही एग्जिस्ट कर रहा था। तो जनरली the players wear white shirts and besides that it is generally played in the daylight. So that's why the red ball is preferred. So in case of one day cricket, it is generally played in the day night format. So white ball will be better in terms of visibility as well as it will not contrast the colors of the jerseys. ओके, इसके अलावा अगर मैं कहूँ रेड बॉल और व्हाइट बॉल में कोई डिफरेंस, टेस्ट बॉल और वनडे बॉल में कोई डिफरेंस इसके अलावा? No, in terms there is no difference in both. लेकिन मैं तो सुनता हूँ यार कमेंटेटर जो बोलते हैं, मैं पढ़ता भी हूँ कि रेड बॉल ज्यादा स्विंग होता है कंपेयर टू व्हाइट बॉल। I don't think. No, वैसे तो कुछ लग नहीं है। अच्छा, एक बार देखना बेटा, स्पिन स्विंग दोनों पार्ट आपको देखना रहेगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ आप अपने आप को यहाँ से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? So actually, I want to be in the leadership role in any organization. So initially in the first few years, let's say 5 to 7 years, I will learn how to be a good leader, how to lead the various projects in the organization, and after that I will try to lead the various projects of the if any organization I will be a part of. ओके, अगर मैं कहूँ कि आपने 5 साल बहुत मेहनत किया, आपके साथ आपके कॉलेज भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया 5 साल, ठीक है, और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब प्रमोशन टाइम आया तो आपको प्रमोशन नहीं मिला, आपके कॉलेज को मिला प्रमोशन, ठीक। तो आप उस समय कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप उनसे बेहतर थे लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिला? Actually, I think मतलब I will work on that once again. मतलब मैं कुछ एक गलती किया हूँ जो वो मेरे से बेटर किया है, इसलिए उसको मिला है।
तो वही मेरा I will work on my defects and I will try and correct them to get a future opportunity. ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल, है ना, अपन एक जस्ट एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि एक कंपनी है HPCL, एक कंपनी है IOCL, ठीक है। Yes, sir. दोनों के प्रोडक्ट हैं, जैसे HPCL का आपका HP का वो आता है गैस सिलेंडर, और Yes, sir. IOCL का भी गैस सिलेंडर आता है। उसको किस नाम से जानते हैं? Yes, sir. किस नाम से जानते हैं उसको? Indian. इंडियन, ठीक है। Yes, इंडियन sir. और HP का दोनों का सिलेंडर आता है। अब आपकी जिस एरिया में पोस्टिंग है, Yes, sir. ठीक है ना, उस एरिया में आपको सेल्स में रखा गया है, और ये है कि वहां पे आप HPCL में है और वहां पे इंडियन का जो गैस है वो ज्यादा डिमांड में है, मतलब ज्यादातर लोग इंडियन ही यूज करते हैं। लेकिन आपको बोला गया है कि भाई HPCL का गैस भी आपको, अब ऑब्वियसली आप सेल्स टीम में है ना, और मुझे लगता है कि आप लीडर भी हो गए उस सेल्स टीम का, चलिए ठीक है। तो आपको अगर बोला जाए कि अब आपको टारगेट बढ़ाना है, मतलब आपका जो सेल्स वो है, टारगेट है वो ज्यादा रहेगा, ज्यादा आपको करना है चीजें, तो आप कैसे करेंगे मैनेज? सर फर्स्ट आई नीड टू सी मतलब कस्टमर इंडियन के लिए क्यों ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है बिसाइड्स HPCL। फर्स्ट है मार्केट वो पहले सेगमेंट। से था वहां पे पहले से था इंडियन पहले से, इसलिए लोग पहले से ही यूज कर रहे हैं इंडियन को। आपका जो HPCL है वो बाद में आया, मतलब 2 साल पहले इंडियन वहां पे चल ही रहा था, 2 साल के बाद HPCL आया, तो अब कैसे करोगे? So I think the market promotion is required to make the customers aware of the new HPCL plant here and new HPCL dealer here. So once more and more customers will be aware, and we may offer some of incentives like suppose you take a connection from us, we can give you some regulator or something like that in free. So this will attract more and more customers. So once the customer base is made, we can think that the sales will be more and more. Right. So that's all. I think we can go for the feedback. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे आपका ये जो इंटरव्यू है ओवरऑल है ना, वो हम एंड करते हैं। अब बात करेंगे फीडबैक के बारे में। Yes, sir. तो हमें आपको कैसा लगता है आपका इंटरव्यू कैसा था? बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन आ नहीं रहा था, बस वही थोड़ा गड़बड़ हो गया। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो 2-3 पॉइंट्स पर मैं बात करना चाहूंगा। एक है, यस, टेक्निकल इंटरव्यू में टेक्निकल पार्ट आपको रेडी करना रहेगा, और थोड़ा सा है ना रेडी करना रहेगा, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट चाहिए उस पे। और जैसे कि आपने जो फेवरेट सब्जेक्ट बोले है ना, आपने 4 फेवरेट सब्जेक्ट है, एटलीस्ट मुझे लगता है कि किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट रेडी होने चाहिए, ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट। और एक बाय डिफॉल्ट आपके रिज्यूमे से क्वेश्चन आएगा, भले इंटरव्यू सेशन में आपका वो क्वेश्चन नहीं आया, जिस तरीके से चल रहा था मैं वो चीज पुट नहीं कर पाया, हालांकि बार बार मैं वो देख रहा था और टाइम कंस्ट्रेंट भी था हमारे पास। एक आपका क्वेश्चन आएगा मैन्युफैक्चरिंग से, बिकॉज आपने अपने रेज्यूमे में 2 जगह मेंशन किया है, इवन दो आप अपने इंट्रोडक्शन में ये पार्ट लाया था, दैट इज योर HAL में आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में जाने हैं। देखिए, साथ के साथ NPTEL में आपने मेटल फॉर्मिंग में कोर्स किया, तो मैन्युफैक्चरिंग से आपका क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं टेक्निकल, मुझे लगता है। दूसरा चीज, आप जो अपना रिज्यूमे बनाए हैं है ना, उसपे जो समर इंटर्नशिप है वो तो ठीक है ना, उसको और मुझे लगता है कि अच्छे से लिखा जा सकता था। आपके प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जो है उसको थोड़ा सा इलॉबरेट करके और कैची वर्ड्स के साथ लिखना है ना। जैसे आपने सिर्फ लिख दिया है एरोलिफ्ट टरबाइन और उसके बाद एक लाइन का उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो उस पर 2-3 लाइन आप जैसे बता रहे थे, तो उस पर 2 लाइन कम से कम होना चाहिए। फिर जो वर्ल्ड टरबाइन है उसमें 2 लाइन जो जो चीजें हैं ना वो मेंशन करना चाहिए, जो की पॉइंट्स है ना वो मेंशन होना चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स है ना, वो जिस तरीके से आपने इलॉबरेट करके लिखा है उसको और कंसाइज करना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेशन कोर्स में आपने जैसा मेंशन किया है ये कॉमन है, लिखना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए, लेकिन ये कॉमन है। जैसे एनपीटीईएल का सर्टिफिकेशन कोर्स लोग करते ही एनपीटीईएल के आपने दो कोर्स किया, चलो आपने अलग अलग सिक्योरिटी अलग अलग कोर्स है तो उसको आपने अलग अलग लिखा, चलो अच्छी बात है ना। तो ये ध्यान रखना। साथ के साथ अगर मैं बोलूँ कि आपका इसके अलावा इस पे जो हॉबीज है वो चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो, है ना। वो है एक लास्ट पॉइंट है, आपका जो रेज्यूमे है उसमें ना एक नीचे ना डिक्लेरेशन होता है। सॉरी, डिक्लेरेशन कैसा डिक्लेरेशन होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने रेज्यूमे में लिखा है वो सही है। समझ में आ रहा है? आपका एक डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन में आप क्या करोगे कि उस पर लिखोगे कि जो भी रेज्यूमे में आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो सही है, और उसके नीचे नाम और डेट के साथ साइन होना चाहिए। अभी तो चलो आपने सॉफ्ट कॉपी भेजा, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन अगर आगे आप होता है तो सॉफ्ट कॉपी में भी आप चाहो तो डिजिटल साइन यूज कर सकते हो। और डेट इसलिए लिखा जाता है कि आपने वो रेज्यूमे कब लास्ट अपडेट किया। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। हार्ड कॉपी में तो एकदम नेसेसरी है ना। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहले वहीं पे फोकस करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है दो चीजें हो सकती है आपके इंटरव्यू में। अगर इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू होता है जहाँ पे आपका फोल्डर आएगा और फोल्डर में आप रेज्यूमे तो सबसे पहले लगाएंगे, और वो सबसे पहले ओपन करके रेज्यूमे वाला पार्ट वो देखने वाला है। रेज्यूमे वाला पार्ट देखेगा तो वो क्या करेगा कि वहां पे देखेगा कि क्या क्या चीजें, और वो डेक्लेरेशन वाला पार्ट देखेगा कि भाई ये तो अपना ही जो लिखा है उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है ना। तो वो एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि क्योंकि ज्यादातर चांस है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो फोल्डर रहेगा वो ओपन करके देखा जाए, ज्यादातर ये चांस है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि आपका रेज्यूमे पे इतना फोकस नहीं होती चीजें, लेकिन वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैं बोलूंगा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में वो इतना बात नहीं करते, है ना। आपके रेज्यूमे पे एक एक पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, वो आपके प्रोजेक्ट पे फोकस हो जाएंगे, आपके टेक्निकल नॉलेज पे फोकस हो जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो डील करता है पब्लिक डीलिंग पे, जैसे मैं बोलूँ ऑयल कंपनीज है ना, तो ये सब इन चीजों पे फोकस जरूर करेंगे, तो इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो एचआर वाले क्वेश्चंस आपके लिए थे वो सही थे, है ना, मतलब आपने सही आंसर दिया। उसको और थोड़ा सा प्रॉपर्ली सेट करके आपका जो उस पर व्यू था वो सही था। जैसे मैंने आपको पूछा कि भाई सेम प्रोडक्ट के लिए आप कैसे इंप्रूव करेंगे अपने आप को, तो आपने बोला कि कुछ इंसेंटिव कुछ ऑफर्स करेंगे, बहुत अच्छी बात है। यस, हम कनेक्शन खरीदने पे उनको ऑफर्स कर सकते हैं भाई, बेसिक ऑफर कि हम एक आपको जो गैस है वो सीधा जो होता है इसको है ना, वो हम दे रहे हैं, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। हर 6 महीने में एक बार सर्विसिंग के लिए आ सकते हैं, है ना। इस तरीके के पॉइंट्स अपने को मेंशन करना चाहिए। और अपने आप को आप 5 साल बाद कहाँ दिखते हैं, ठीक है ना। इसके और कुछ पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो कि अपने आप को शुरू से क्या सोचे हो कि भाई अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो या आपने पढ़ाई किया, आपने प्रिपरेशन किया, तो आपके दिमाग में क्या था कि आप क्या बनना चाह रहे हैं, और वो बनना चाह रहे हैं कि क्या जिस फील्ड के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उसी फील्ड से कनेक्ट कर रहा है, उसी में क्या आप आगे जाके 5 साल बाद अपने आप को देखना चाह रहे हैं। समझ में आई क्या बात मेरी? तो ये सारी चीज ठीक है। फिर बाकी तो इतना ही है, अमित सर बताएंगे। हाँ, आज सौम्या आपको पहले तो कैसा मतलब क्वेश्चन कैसे लग रहे थे और कैसा लगा आपको मतलब अभी इंटरव्यू पहले? का थोड़ा मतलब टॉपिक था। देखो सौम्या, देखो जैसे गेट के करस्पॉन्डिंग अगर गेट से आप इंटरव्यू देने चाहते हो, अगर मैं पहले गेट की बात करूं, ठीक है, तो मान लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बीआरसी, डीआरडीओ और इसरो के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो डीआरडीओ, इसरो या बीआरसी में तो थोड़ा सा आपको टेक्निकली जो है और देखना पड़ेगा,
मतलब और थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल है, आप स्टैंडर्ड बुक को जो है वो प्रेफर करिए। जैसा कि सर ने बोला है कि मिनिमम 4-5 सब्जेक्ट जो है वो आपको अपने मतलब बेस्ट बोलना रहेगा, ठीक है। तो ये 4-5 सब्जेक्ट जब आप चूज करना है ना, तो ये ध्यान रखना कि सेम स्ट्रीम से ना होने पाए। जैसे थर्मो हो गया, आरएसी हो गया, आईसी, एचएमटी, एफएम, ये सेम स्ट्रीम हो गया। तो 2 सब्जेक्ट आपने डिजाइन से उठा लिए, 2 थर्मल से उठा लिए, एक आध आपने मटेरियल साइंस समथिंग ऐसा रख दिया। तो जितने भी पैनल में आपके इंटरव्यू मेंबर होंगे, सबका कुछ ना कुछ आपका चलता रहेगा, तो क्योंकि सभी आपको फीडबैक देंगे ना। अब पता चले आपने एक ही सब्जेक्ट से पूरा डोमेन से रख दिया, तो 3 लोग फ्री हो गए, तो वो आपको थोड़ी ना फिर लाइक करेंगे, ठीक है। तो सभी इंगेज होने चाहिए, कुल मिला के कहने का, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रोजेक्ट आपका जो है, ठीक है, अगर आपकी इनकेस रैंक बहुत बढ़िया है, तो फिर टेक्निकल थोड़ा सा लिटिल बिट इंटरव्यू जो है वो लेट शुरू होता है। आपका प्रोजेक्ट, आपका ट्रेनिंग पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। ट्रेनिंग में हमेशा ऑनेस्टली दिखाने का मतलब वो होता है, ऑनेस्ट रहिए बिल्कुल। अगर नहीं आता है तो एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग उनको भी पता है कि 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में कंपनी में आप कुछ सीख नहीं सकते हो, या वहां कोई सिखाने के लिए फ्री में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। ये उनको भी पता है। तो बस वो आपकी ये चेक कर रहे हैं ना कि आपका ऑनेस्टी कैसा है, मतलब आपका एटीट्यूड क्या है चीजों को लेके। अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बताना शुरू करें और आप बोले सर मैं एचएएल में गया था और पहले दिन मैंने एयरक्राफ्ट बना दिया, ठीक है। तो फिर वो मानेंगे थोड़ी ना, क्योंकि 1 महीने उनको भी पता है कि वहां क्या होता है, ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट होती है। तो वैसे आपको अगर कहीं पर कुछ नहीं आ रहा है, तो आप सीधे पोलाइट वे में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सर ये हमने नहीं देखा है, या ये हमें नहीं सिखाया गया है, ठीक है, या हम ये नहीं जानते समथिंग। दूसरा ये है कि टेक्निकल की अगर आप बात करोगे, तो टेक्निकल में जैसे सभी का बेसिक होता है थर्मो और सोम। थर्मोसोम आप बेटर तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि आपका इंटरव्यू थर्मो एंड सोम से स्टार्ट होगा। अगर कर सकते हो तो मटेरियल साइंस भी आप एक बार देखिएगा। खासकर मुझे लगता है सोम का प्रेफरेंस ज्यादा बढ़िया होता है, मतलब सोम ज्यादा मतलब पूछते हैं लोग, ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो सोम में थोड़ा कमांड आपका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट जो आपने किया है, आपने क्या किया है, न्यूमेरिकल किया है, एक्सपेरिमेंटल किया है, आपने क्या रिजल्ट गेन किए, क्या आपको मिला, उसका अदर लोगों से आप कैसे कंपेयर करोगे, आपके फील्ड में और किसी ने क्या कुछ इस पे कर रखा है क्या, तो वैसा कुछ आपको मिल रहा है, आपका रिजल्ट मैच हो रहा है क्या, समथिंग ऐसे एक जस्टिफिकेशन होता है। एंड क्या क्या अभी और स्कोप है जो आप नहीं कर पाए, अगर आपको टाइम मिलता या रिसोर्सेस मिलते या गाइडेंस मिलती, तो आप ये चीजें भी कर सकते थे, ठीक है। तो कुछ कुछ पैरामीटर हैं जो प्रोजेक्ट में आपको अपने देखने पड़ेंगे कि हमने इतने टाइम में ये किया, विद लिमिटेड रिसोर्सेस या गाइडेंस के साथ, अगर हमें मिलता तो हम ये कर सकते थे। मतलब एक तरह से उस टॉपिक का एक्सटेंशन आप जो है वो बोल सकते हो, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया। दूसरा जैसे रिज्यूमे मैंने देखा है, ठीक है, तो रिज्यूमे सर ने जैसे मैक्सिमम जो जो पॉइंट थे वो सर ने गाइड कर ही दिया है आपको। थोड़ा सा रिज्यूमे ऐसी मतलब थोड़ा और जैसे कुछ आपने प्रोजेक्ट के बारे में 2-3 लाइन और आप लिख दीजिए, और वो पॉइंट लिखिए ना जो आप चाहते हो कि आपसे पूछे वो। मतलब एक होता है ना कि इंटरव्यू हम उस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं जिधर हम कंफर्ट है, ठीक है, जो हमें आता है, तो वो पॉइंट थोड़ा सेलेक्ट करें, की पॉइंट जो है प्रोजेक्ट के, वो की पॉइंट वहां पर डालिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मान लो एनटीपीसी में आप जाते हो, 15 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा, आपने कुछ की पॉइंट डाल रखे हैं, तो 2-4-5 मिनट वहां पर आप उनको इंगेज कर सकते हो, ठीक है। और एक बार इंटरव्यू स्टार्टअप हो गया ना बढ़िया अच्छे से, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड बॉडी एक्सप्रेशन में थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि लाउड जितना अपनी वॉइस को रख सकते हो, लाउड, ठीक है, लाउड जितना तेज बोल सकते हो। और स्माइल ठीक है, अगर नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी पता है कि प्रेशर होता है इंटरव्यू का, ठीक है। तो स्माइल के बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा, बट स्पीड अपने बोलने के जो वॉइस है वो थोड़ी सी तेज रखिए, फ्रीक्वेंसी। बाकी तो और तो मान लो मुझे सही लगा। जो है ना, आपकी आवाज ना लाउड कैन मतलब क्लियरली ऑडिबल होना चाहिए। अभी तो खैर हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो इतना वो नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर वो सामने होगा ना, तो एक तो क्लियरली ऑडिबल होना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज, लाउड का ये मतलब नहीं है कि सामने वाले को एकदम ऐसा लगे कि गुस्सा कर रहा है ना। वो, हाँ, वो मॉडरेट लेवल पे कि आप, यस, आप उनको उनसे बड़े प्यार से उनकी बातों को सुन रहे हैं और उन उसके बाद जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देयर शुड बी अ पेशेंस लेवल होना चाहिए, ठीक है ना। और जो इंटरव्यू जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरव्यू होंगे, उसपे स्पेशली आपका पेशेंस लेवल, आपका इंटरेस्ट वो देखा जाएगा। वो ऐसा नहीं देखा जाएगा कि ये सिर्फ जॉब के लिए आया है। क्या वाकई में जैसे डीआरडीओ का इंटरव्यू हुआ,
तो डीआरडीओ के इंटरव्यू में क्या आप वाकई में इंटरेस्टेड हो क्या, मतलब वाकई में वहां काम करने में इंटरेस्टेड हो क्या, बीआरसी में वाकई में इंटरेस्टेड हो, उसके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करेंगे पता है, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और एक क्वेश्चन को सीखना 1 घंटे तक लगातार, तो आप डिस्कशन में कितना इन्वॉल्व हो रहे हो, कितना एंजॉय कर रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अभी तो आप मजे से चीजों को कर रहे थे, बहुत अच्छी बात की है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल। तो यस सर, यहाँ पे एंड करते हैं इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट ऑन, है ना, जो भी करो, है ना, आगे जो भी सीखते रहेंगे आप, और भी कनेक्टेड हो, है ना, और भी पूछ सकते हो जो भी रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, है ना, परिवार का ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो, ठीक, और जितना हो सकता है लोगों की मदद करो बस, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. बेस्ट ऑफ लक दोस्त, बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much, sir. ओके।